So we'll be starting medieval history. We're already done with ancient. So medieval history का जो पहला जो time है, that is from starting from this period 750 or 800 you can say. So from here till 1200 it is the early medieval. Okay, it is the early medieval. From 1200 खास करके 1206 से दिल्ली सुल्तानेट और दिल्ली सुल्तानेट will start. So from here the real medieval starts. Okay, after Delhi Sultanate we'll go with Mughals. And I'll tell you the important thing which will be which comes in exam. Okay, early medieval mostly they will ask about chronology. Okay, but still then we'll cover everything. Delhi Sultanate and Mughals mostly they'll ask from art and culture. Okay, they'll ask from maybe from any monuments, they may ask from any dance or any music or paintings, because it was thriving during the Mughals, in the early Mughals, at the mid Mughals, not during the later Mughals, but during the mid Mughals, they'll ask from art and culture. Okay, if they ask, they'll ask from art and culture. Fine. So we'll start today with early medieval, that is from 750 to 1200 AD. Okay, 750 to 1200 AD. So after 1200, Delhi Sultanate will start. Okay, so early medieval is called post Harshavardhana. Harshavardhana we have already done. That was our last topic in our ancient history. So after Harshavardhana, what happened? After Harshavardhana, Kannauj became a very important city. So you can see till end of ancient, the most important city was Patliputra. Okay, Patliputra was very much important. It was the center. जैसे कि Bengal in modern times, Bengal was the center, but in 1911-12 the things all shifted to Delhi. In the same way in ancient, now things shifted from Patliputra to Kannauj. Even during Harshavardhana also Kannauj had become a very important center, and the shift already started. Now this was a continuation of that. Now the things shifted to Kannauj. So Kannauj was the important or main power center, and now the three contenders came, that is the Kannauj tripartite. Gurjara Pratyaras in the north, they are famous for cavalry. Palas in the east, they are famous for elephants. Rashtrakutas in the Deccan, they are famous for forts. You have to remember all these three. They had this comparative advantage. Okay, now these three is called Kannauj tripartite, because three big dynasties were wanting to capture Kannauj. Okay. So together this is called Kannauj triangle or Kannauj struggle or Kannauj tripartite. Now what are the causes? Because everyone wanted to control our Kannauj, because things have started shifting to Kannauj, so it was a symbol of prestige. Anyone who controls it, it will be a prestige. For control over vast resources of Gangetic plains. Okay, obviously who will control Kannauj? The same dynasty will be controlling the Gangetic plains. Desire to impress the petty kingdoms with the sense of their might. Now small kingdoms started happening around Kannauj also. Rajasthan, Haryana, Delhi, small Rajput kingdoms also started. Okay, in a very initial level they started, but they need to show that okay, we are the mightiest. Now lust for war booty, that is a prominent source for maintaining big army. Okay, so these are the reasons why the need was that we have to capture Kannauj. All the three kingdoms were evenly matched, like they were very equal in power. Like there was not uneven match, or there was a level playing field. Therefore, apart from holding the region for some time, none of them could permanently hold it. Also, the resources exhausted in the struggle affected their other ambitions. So if you see in this particular time, they are totally into they're totally into capturing Kannauj. That's why the other ambitions, you will not find much of art and culture. You will find there are art and culture something, but their main target was to control Kannauj. Okay, so other things, they did not give much attention to other things. Then so one by one we'll be studying. First is Gurjara Pratyaras. They began rule from Gujarat, West Rajasthan. Just imagine the area. Okay, Gujarat, West Rajasthan. Later they ruled over Kannauj. Everyone once upon a time they ruled Kannauj. Okay, three were equally powerful. But obviously, in some other at a particular point of time, someone will be like winning. But
As a whole, all the three were equally powerful. So one of the king was Nagabhat. Nagabhat was the first ruler of this dynasty. And remember the capital. In state exams, they may ask capital and they may ask the first ruler name also. But in UPC, they will not ask. First capital was Bhilmara, then later Ujjain. Now, Gwalior Prasasti. This can be asked. Gwalior Prasasti was composed in his praise. In his praise. Then Nagabhat II came, capital Kanauj. Okay. So just remember, Kanauj was not the first capital for Gurjara Pratharas. First capital was Bhilmara. Okay, then Ujjain. Then, so Kanauj was the third capital. Okay, it was the third capital. Now, one of the most important king was Bhoja or Bhoja I. So he was, like it is said, he was the first real founder. Obviously, Nagbata I was the ruler of the first ruler, but the real founder, like because under him, Gurjara Pratharas thrived. So his title was Adivaraha. This is the time period. Other titles like Mihir, Prabhas, and Adivara means worshipped Vishnu. So यहाँ से पता चल जाता है कि okay, they were worshipping Vishnu. Okay, then Mahendrapal. See, Mahendrapala one is not from Pala dynasty. Remember, Mahendrapal is from Gurjara Pratharas. Mahendrapala was the son of Bhojavan. Here empires more expanded to the Himalayas in the north, to the Vindhyas in the south, and from Bengal in the east to Gujarat in the west. So it was quite a big empire under the control of Mahendrapal. And remember, during this time, Muhammad Ghazni came. Ghazni came and invaded Kannauj during whose reign? During his reign. So they can ask in any kind of state exams which of the following, during which of the following reign of the Gurjara Pratharas Muhammad Ghazni invaded. So it is Mahendrapal I. Okay. तो यहाँ पे वन फेमस कोर्ट पोइट वाज देयर जिसका नाम है राजशेखर. ओके, राजशेखर. Rajshekhar was a very famous court poet. He had written a very famous work, that is the Kavya Mimans. Remember this name? Kavya Mimans. They may ask in prelims, Mimansa. So they may ask two types. One is who did it? Fine. Otherwise they'll ask Kavya Mimamsa was composed under which of the following dynasty? So it is Gurjara Pratharas. Remember, Gurjara Pratharas. Okay, Kavya Mimams. When you give lot of MCQs, all these things will come. Okay, when you start giving lots and lots of MCQs, automatically that revision will come. Okay, you may do it wrongly, you may attend the question wrong, but at least at that point of time, when you do the explanation, you read the explanation, that is nothing but your revision. There only you will connect. Okay, we had studied in our notes. Now this is the answer. So it acts as a revision. Second time revision, it acts, the explanation acts as a second time revision. So इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, you have to keep practicing MCQs. Okay. Arab traveler Suleiman and Al-Masudi visited India. आसपास इसी टाइम पे 9th and 10th century AD पे आए थे. Now all these things I'll be taking one more class on medieval travelers. I took one class on ancient travelers, right? Similarly, I'll be taking one more class on only on medieval travelers. There I'll be covering Suleiman Al-Masudi in detail. But yes, as of now, you should know, okay, they visited because they visited 10th and 9th. Why I'm telling? Because they may ask or frame a question which arrange the following travelers in chronology of their coming to India. So it will be very difficult question if you do not know exactly. At least you should know the century. This is the person who had come from in this century. Okay. Okay, Arab travelers came. Suleiman and Al-Masudi wrote about power, prestige, and vastness of the empire. Now, how to remember? See, first of all, like how I remember during when I was giving prelims, I remember by visualization. I will remember these two names, and I will remember the page. This is the page. I'll remember. Okay, the heading was Gurjara Pratharas. Okay, so I'll remember this 9th and 10th century. And I'll remember the page. This is the page, and in some नीचे के down में लिखा गया है. So that is how you have to visualize, because everything you can't remember, right? Or else if you are making notes, then remember where you have made notes. What is the page? ऊपर लिखे हो, side में लिखे हो, या नीचे लिखे हो, एक जगह पे लिखते हो, right? So that visualization keep in mind. तो वो ऑटोमेटिक याद रह जाता है. आई डोंट नो लाइक ये आपके जैसा ये कैसे होगा, बट आई यूजुअली डू इट, और मेरा काफी सक्सेसफुल रहा है ये.
ओके, स्ट्रॉन्ग किंगडम था. सक्सेसफुली दे फेस्ड और रिपेल्ड द अटैक्स ऑफ अरब्स फ्रॉम द ruins ऑफ दिस किंगडम अराउज मेनी ऑफ राजपूत स्टेट्स. so ये जो ruin हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे राजपूत स्टेट्स आए उसी एरिया पे. ओके, इसके बाद आए 9th 10th सेंचुरी में राजपूत आएंगे. नाउ ग्वालियर इंस्क्रिप्शन जो ऊपर हमने पढ़ा, दैट इज द ग्वालियर प्रशस्ति और ग्वालियर इंस्क्रिप्शन. नाउ हु wrote this inscription? It is Mihir Kula. Okay, now it is also a Sanskrit inscription. Okay, it is the recorded construction. It recorded the construction of a Surya temple from stone by Matrichita, the name. Okay, who constructed this Surya temple? Okay, they used, now obviously in inscription means they will use a script, right? Now it is an ancient Gupta script, so nothing new will come. Everything will be influenced by previous. From now on, whatever you see in medieval, whatever you see, most of the thing, 90% will be influenced from previous dynasties. Yes, they will be having some unique points that I'll tell you, but most of the things they are influenced, or they will be influenced from previous dynasties. So it was a 6th century Gupta era का एक script से यहाँ पे लिखा गया था. Discovered Gwalior Fort, mentions about the rule of Mihir Kula. Who was Mihir Kula? Already covered. Mihir Kula was a Huna king. Toraman and Mihir Kula, we have already covered. Toraman and Mihir Kula. तो ग्वालियर प्रशस्ति इनके बारे में भी लिखा है, गुजर पतेरस के बारे में. प्लस इट ऑल्सो मेंशन्स अबाउट द हुना किंग मीर किला, क्योंकि इससे पहले ही हुना इन्वेजन हुआ था. ओके, नाउ कम टू पालास. पालास वेर वेस्ट बंगाल के एरिया पे दे वर रूलिंग. ओके, ईस्टर्न साइड में. so they ruled over mainly Bengal, then Bihar, some parts of Odisha, northern Odisha and Assam also. सबसे ज़्यादा वो बंगाल में थे, बट ऑल्सो रिमेंबर बिहार, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा एंड असम. तो दे ऑल्सो केम इन द मिडिल ऑफ 8th century. इनका जो फाउंडर है गोपाला. ओके, गोपाला. देन one of the important kings were Dharmapala. Okay, now Dharmapala founded the Vikramshila University. विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन्हीं के टाइम पे हुआ था. जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी गुप्ता के टाइम पे हुआ था, कुमार गुप्ता के टाइम पे. सिमिलरली विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन्हीं के टाइम पे हुआ था. नाउ इट वाज ऑन द रिवर ऑफ गंगा, सेकंड टू नालंदा यूनिवर्सिटी, एंड डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी. 1200 AD पे बख्तियार खिलजी ने इनको डिस्ट्रॉय किया था. ओके, नाउ ही टुक द टाइटल ऑफ परमसंगता, दैट इज द ग्रेट बुद्धिस्ट. और पाला एरा पे सबसे बड़ी चीज जो रिलीजन में हुई थी, दैट वाज द व्हिच बुद्धिज्म? तांत्रिक बुद्धिज्म, व्हिच इज अदरवाइज कॉल्ड वज्रयाना. ठीक है, वज्रयाना बुद्धिज्म इसी टाइम हुआ था. ओके, वन प्रशस्ति ऑल्सो देयर, मतलब हिंदी में प्रशस्ति को इंस्क्रिप्शन ही बोलते हैं, दैट इज द केशवा प्रशस्ति. रिमेंबर, केशवा प्रशस्ति related to Pala. Okay, you have to remember this both for both state exams and UPSC. Keshava Pratisthi, that is the Bodh Gaya stone inscription. Bodh Gaya stone inscriptions. Okay, Keshava Pratisthi during Dharmapala's reign. See, UPSC does not expect you to remember ki under which reign it was there, but at least you should remember, okay, it is related to Pala. But in state exams, they expect you to remember this. Okay, because it will be kind of a direct question, any kind of state exam. Okay, it was work of Keshava. Keshava, he was a person who was the son of sculptor Ujala. Ujala एक sculptor थे, and उनका बेटा था. ओके, तो उन्होंने ही ये बोध गया इंस्क्रिप्शन और द केशवा प्रशस्ति किया था. Now it records the establishment of an image of Chaturmukh, four-faced Mahadev, and the excavation of a lake at the cost of 3000 coins or dramas at Mahabodhi.
तो एक इवेंट उन्होंने रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इमेज ऑफ चतुर्मुख फोर फेस्ड महादेव एंड द एक्सकवेशन ऑफ ए लेक एट द कॉस्ट ऑफ 3000 ड्रामा दैट इज कॉइंस एट महाबोधि। ओके, महाबोधि टेम्पल। नाउ महाबोधि टेम्पल के बारे में नाउ अब सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे? ऑब्वियसली महाबोधि टेम्पल के बारे में इट इज ए यूनेस्को साइट बाय द वे। नाउ महाबोधि टेम्पल को तो हम आर्ट एंड कल्चर में ऑलरेडी लाइक विल कवर, already covered in my previous batch, but I'll cover it again. But when you revise this, you can go through Mahabodhi temple on your own also from the internet. No need to search any books because information will not find. You will find 1 or 2 lines in any book. But in the internet, the right use of internet, 3 to 4 sites. Go to the Mahabodhi government site. Go to the Bihar government site. You will get lot of information. Questions are made from government sites. Questions are not made from XYZ sites of UPSC. They like those institutes. They'll ask from government sites only. Okay. और फिर the real sites of any for any जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इस बार IR का क्वेश्चन जो आया था, UN हैबिटेट का क्वेश्चन आया था, राइट? UN हैबिटेट का, इट वाज फ्रॉम डायरेक्ट UN हैबिटेट साइट और ओवर यू हैव टू गो इनसाइड। ओके, तो वहां से डायरेक्ट दे विल टेक द सेंटेंस एंड आस्क। Okay. Next, खालिमपुर कॉपर प्लेट। ये भी खालिमपुर कॉपर प्लेट भी इनका है, पालास का है। Here what happens, it records Dharmapala's defeat of Indrayudha and installation of its tributary Chakrayudha at Kannauj. No need to remember this, just you have to remember the inscription name. It also says that the first ruler was Gopala, who belonged to the legendary Solar dynasty. So this also no need to remember. You just need to remember, okay, Khalimpur copper plate is related to Pala dynasty. Okay, Nalanda copper plate, again Pala dynasty at Gaya. Nalanda stone inscription. Now see. Now two things. Nalanda University. This we know. Nalanda University, Gupta. But अगर नालंदा stone inscription आएगा, then you have to go with Pala. But there they'll put an option of Gupta, and most of the people will go with Gupta. Not most, 99.99% people will go with Gupta. Because they will connect Nalanda stone inscription to Nalanda University, Gupta, because it is a very common thing. Gupta se hua tha. But that will be wrong. Inscribed on a stupa sculpture with carvings that depict seated Buddha figures. तो seated Buddha का figures भी वहाँ पे है. Because they were tolerant. Palas were tolerant. Okay. Okay. One more important seals were found. It is the Paharpur seals. ठीक है, ये भी पाला का है. Now when a Palak art and culture का question आएगा, if an art and culture question comes, you can very easily take these points and write it. You can very easily have the content here. You can directly take this and write it there. वहाँ पे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में लिखोगे, वो भी एक आर्ट का बात है, कल्चर का पार्ट है. तांत्रिक बुद्धिज्म वज्राने के बारे में लिखोगे, यहाँ पे सीटेड बुद्धा के बारे में लिखोगे, पहाड़पुर सील्स के बारे में लिखोगे. एवरीथिंग यू कैन राइट. ओके. Discovered from Somapura Mahavihara. One more thing I just need to say here, कि when you are preparing for mains, don't forget to study your notes. These notes will value add your mains answer. You may get lot of answers in the market. Okay? If you are getting in the market, so everyone are getting in the market. It's not only you who are getting, everyone are getting. Those are free of cost available, but those will be 700 to 800 words answer, which will not help you without any proper thing, without any proper explanation, because those are made by students only. Those are made by students. Okay. So always try to make your own answer from your own notes with word limit. Always. Okay. You can follow this. You can refer. Keep it for reference, not for exam. Okay. If you miss something here, you can take it from here.
ओके, इसलिए जो हम इतना क्वेश्चन से बाहर के टेस्ट से करते हैं, लेकिन बहुत बच्चों का होता नहीं है, राइट। एक चीज़ है कि क्योंकि वो आंसर ऐसा है कि हम लिखते नहीं है, वी डू नॉट राइट, बिकॉज एवरीथिंग बना बनाया हमको मिल जाता है, एवरीथिंग बना बनाया मार्केट में मिल जाता है। वी डोंट, वी थिंक कि हम इसको पढ़ के चले जाएंगे और हम हमारा हाथ बहुत इजीली वहाँ पे एग्जाम पे चल जाएगा। Very wrong thing. You have to write it on your own. You can refer it, but write it in your own copy. And that copy you have to revise before the exam day. Obviously, you have to revise for 90 days, but before exam, जो एक नाइट में जो आप पढ़ते हो, tomorrow morning is exam, today what to study, you have to just go through your answers in a very fast way. In 1 minute, 2 to 3 questions, you have to just go through the things which you have written, because it is you who have written. आपने उसको जिया है, आपने लिखा है, किसी और ने नहीं लिखा है। तो आप अपना चीज जब पढ़ते हो तो रिवीजन बिकम्स फास्टर, बिकॉज आपने लिखा है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, आप लिखो, अपना आंसर खुद लिखो, देख के बेशक लिखो, लेकिन लिखो अपने कॉपी में, उसको एक बार उतार दो कॉपी में, दैट विल हेल्प यू। ओके, बिकॉज हम सबको पता है विदाउट मेंस आईएएस एंड आईपीएस इज अ ड्रीम। ओके, विदाउट मेंस। और मेंस सबसे इजी है, मेंस डिफिकल्ट नहीं है, प्रीलिम्स डिफिकल्ट है, मेंस इज नॉट डिफिकल्ट, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, मेंस इज टोटली नॉट डिफिकल्ट। ओके, पहाड़पुर सिल्स डिस्कवर्ड फ्रॉम सोमापुरा महाविहारा। सोमापुरा महाविहारा हम पढ़ेंगे, देयर आर 5 बिग महाविहारास, ओके, एंड ऑल ड्यूरिंग पाला पीरियड, विल कम टू दैट लेटर। So one of them is Somapura Mahavira, and it's in Bangladesh. So here these are 2 seals, both depict a dharma chakra flanked by antelopes, that is deer, and state that they were issued by the monks belonging to a vihara at Somapura, which was established by Dharmapala ने ये धर्मपाला ने ये किया था। धर्मपाला was a Pala king। ठीक है, यहाँ पे एक धर्म चक्र है, एक एंटेलोप्स है, एंड वहाँ पे लिखा गया है कि these are issued by monks belonging to a Bihara at Somapura, which was established by Dharmapala. So Paharpur Hills, Paharpur Seals, P for Paharpur, P for Pala, ऐसा करके भी याद कर सकते हैं। ठीक है, very important. Valgudar image inscription. Valgudar image inscription, Pala dynasty, records the dedication of an image of God. So Valgudar image inscription also belongs to Pala dynasty. Now the next comes Devpala. Devpala gave permission to Southeast Asian rulers. Shailendra dynasty was one of the dynasty of the Southeast Asian, Cambodia और Thailand जो उस एरिया की है, to build a monastery at Nalanda. ठीक है, वो तो उन्होंने एक परमिशन दे दिया शैलेंद्र डायनेस्टी के रूलर्स को, यू कैन कम एंड बिल्ड ए मोनेस्ट्री एट नालंदा। तो यहाँ पे वन मोर इंस्क्रिप्शन है, इफ यू कैन रिमेंबर द नेम्स अंडर whom the inscription was made, or else if you can't, at least remember the inscription belongs to which dynasty, that will also work. Badal pillar inscription of his descendant नारायणपाला, इससे पहले उनके बाद जो नारायणपाला आए थे, just remember this name, Badal pillar inscription. It describes that his empire extended up to Himalayas, Vindhyas, Arabian Sea, Bay of Bengal, काफी बड़ा empire था। Trade links with Shailendra dynasty, Palas had trade links with the Shailendra dynasty. भागलपुर कॉपर प्लेट, टफ नारायणपाला, रिमेंबर भागलपुर कॉपर प्लेट, ओके, ये भी पाला डायनेस्टी के। सो पाला डायनेस्टी काफ़ी ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस हो गए हैं, ओके, भागलपुर कॉपर प्लेट। तो इनका एक कोट पॉइंट था जिसका नाम है वज्रदत्ता, वेरी फेमस, एग्जाम पे इफ इट कम्स इट विल बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। एक बुक था लोकेश्वरा शतका, लोकेश्वरा शतका, वज्रदत्ता ने लिखा था, ओके, इट कैन कम इन एग्जाम, लोकेश्वर, क्योंकि आजकल बुक का नाम्स भी आ रहा है, प्ले का नाम्स आ रहा है, दिस ईयर प्ले का नाम आया था, स्टेट एग्जाम्स में आ रहे हैं बुक्स का नाम, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, तो थोड़ा इसको रिवाइज करो, ओके। अरब मर्चेंट सुलेमान भी इसी टाइम पे आसपास आए थे, तो दे ऑल्सो रोट एन अकाउंट ऑफ द पालास। द टिबेटन क्रॉनिकल्स टेल दैट पालास वर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग एंड रिलीजियन। तो बुद्धिस्ट का बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे हो रहा था, एंड हियर वन न्यू बुद्धिज्म स्टार्टेड, दैट इज वज्रयान बुद्धिज्म, ओके।
बट दैट डज नॉट मीन कि ओल्ड बुद्धिज्म वो खत्म हो गया. महायाना बुद्धिज्म वाज देयर, Vajrayana was there, even Shaivism was also there. Heenyan थोड़ा बहुत कम हो गया था because Heenyan was very old. Okay, okay. Proto Bengali language, remember. Proto Bengali जो आज के डेट में जो Bengali language है, which is the sweetest language of India, if I'm not wrong. Proto Bengali language was developed during Pala's rule. Remember, ठीक है? Pala's rule. Trade with Srivijaya Empire, Indonesia, Tibetan Empire. Also trade with Arabs, that is the Abbasid Caliphate. इन सब के साथ they had trade. Okay. Next. फिर अकॉर्डिंग टू अब्बू फजल आइनी अकबरी. अब ये जो आइनी अकबरी इट विल कम वेरी लेटर. ये तो अकबर के टाइम पे आएगा, मुगल की बात हो रही है. बट उस बुक में इट इज मेंशन कि द पालास वेर कयस्थास. ओके, so this book is will come in future, but in this book it is mentioned the Palas were Kayasthas. Pala dynasty preceded Gauda kingdom. Just remember, see, Gauda kingdom इतना बड़ा नहीं है, it's not that big, like the time period is not that big. But why I have mentioned, so that chronology questions can be solved. At least अगर एक chronology पे Gauda kingdom है और Pala dynasty है, तो you can simply put that one पहले फिर two पहले. So it will help you in answer. It will help you in reaching the answer. तो पाला डायनेस्टी वाज प्रीसीडेड, तो उससे पहले बिफोर पाला डायनेस्टी गौड़ा किंगडम वाज देयर, हिंदू रूलर्स बट आल्सो सपोर्टेड बुद्धिज्म. ठीक है, उसी जगह छोटे टाइम के लिए गौड़ा किंगडम था. पालास, नाउ पालास के बाद आफ्टर पालास हु केम, सेना केम, देन केम चेरो डायनेस्टी. यहां से भी हमको पता चल गया वन काइंड ऑफ क्रोनोलॉजी. गौड़ इन दैट पर्टिकुलर एरिया, गौड़ा किंगडम, पालास, सेनास, चेरोस. सो आप साइड में जब पढ़ रहे हो रफ में ऐसे करके फिगर करके ऐसे लिख दोगे ताकि एक विजुअलाइजेशन हो जाएगा, कि आपका याद हो जाएगा. कभी भी आप रिवाइज करोगे तो आपका जो आइज है यहाँ पे जाएगा, एंड दैट विल हेल्प यू इफ क्वेश्चन कम्स. बिकॉज दिस विल नॉट हेल्प इन क्वेश्चन बिकॉज इट इज इन सेंटेंस फॉर्मेट, प्रीसीडेड बाई, सक्सीडेड बाई. सो इस प्रीसीडेड बाई और सक्सीडेड बाई आपको याद नहीं रहेगा बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर रिटन, बट दिस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको याद रहेगा. ओके, ठीक है. हमेशा जब भी आप पढ़ाई करोगे एमसीक्यूज बैक ऑफ माइंड में हमेशा एमसीक्यूज रहने चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकता है और ऐसे बन सकता है या फिर ऐसे वो बना सकता है. ओके, लास्ट पाला किंग वाज महिपाला और रामपाला वाज डिफीटेड बाय सेना डायनेस्टी एंड लक्ष्मण सेना वाज डिफीटेड एंड फाइनली लक्ष्मण सेना को बख्तियार खिलजी ने हराया था. ओके, थोड़ा टाइम के लिए चेरो डायनेस्टी आया था. चेरो के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है और जानना भी नहीं है बिकॉज एग्जाम पे पूछेगा नहीं. अगर इफ दे विल आस्क, दे विल आस्क क्रोनोलॉजी. बख्तियार खिलजी वाज द जनरल ऑफ मोहम्मद घोरी. तो बाय दिस टाइम मोहम्मद घोरी आल्सो केम. ओके, विल ऑल कवर दिस कि गजनी घोरी कैसे हुआ, तो ये सब हम करेंगे, बट एक साथ हम कर नहीं सकते बिकॉज वी आर गोइंग डायनेस्टी वाइज. जस्ट रिमेंबर बख्तियार खिलजी का जनरल था मोहम्मद घोरी, सॉरी बख्तियार खिलजी, यस ही वाज द जनरल ऑफ मोहम्मद घोरी, यस करेक्ट. फिर केम सेना डायनेस्टी. सेना डायनेस्टी ने क्या किया, थोड़ा बहुत हिंदू डायनेस्टी था. जैसे कि इससे पहले पाला डायनेस्टी वर मोस्टली महायाना बुद्धिज्म, वो भी शैविज्म थे बट दे वर मोर इनटू महायाना, सॉरी महायाना एंड वज्रायना बुद्धिज्म. बट हियर सेना डायनेस्टी वाज हिंदू डायनेस्टी. शैविज्म, शिव जी को ज्यादा पूजा करते थे. ओरिजिन कर्नाटका, ठीक है, ओरिजिन कर्नाटका बट द रूल्ड इन ईस्टर्न साइड. रिमेंबर देयर ओरिजिन इज कर्नाटका, दे डिडंट रूल इन कर्नाटका. रिमेंबर, दे डिड नॉट रूल इन कर्नाटका. ठीक है, ये ओरिजिन है. फाउंडर समंत सेना, he was from कर्नाटका. सक्सेसर विजय सेना. विजय सेना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ही हेल्प्ड लेड द फाउंडेशन ऑफ द एम्पायर. तो बहुत सारे बुक्स में इफ यू सी सेना डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय विजय सेना, अगर भी आएगा तो यू कैन गो विद दैट, विजय सेना. ठीक है, the Sena kings claim in their own inscriptions that they were ब्रह्मा क्षत्रियस. ओके ओके, नाउ सेना डायनेस्टी का एक इंस्क्रिप्शन है, यू हैव टू रिमेंबर 2 to 3 इंस्क्रिप्शन है, यू हैव टू रिमेंबर. डियोपारा इंस्क्रिप्शंस, वेरी फेमस मेंशन्ड इन बुक्स.
Diopara inscription, not all books but it is mentioned, 2 to 3 books में mentioned है. Diopara inscription सेना डायनेस्टी का है, composed by उमापति धर. उमापति धर, it traces the सेना ancestry. ठीक है, फ्रॉम वीर सेना, वीर सेना से लेके कौन कौन आए थे वो सब लिखा है. नो नीड टू रिमेंबर दिस, बट रिमेंबर उमापनाधर एंड उमापतिधर एंड सेना डायनेस्टी. कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट देयर ओरिजिन, ओरिजिन में कॉन्ट्रोवर्सी है, सो कॉन्ट्रोवर्सी ओरिजिन के बारे में पूछेगा नहीं. एंड देयर इज एदिलपुर और आदिलपुर, एदिलपुर और आदिलपुर कॉपर प्लेट, ये भी संस्कृत में है. ठीक है, इन एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है GND है, जस्ट रिमेंबर कैरेक्टर का नाम है बंटू. In that copper plate, हाँ, it means like usually UPC they'll ask like Sanskrit too detailed they'll go, or just like no. They will only they may too detail means यही सब डिटेल है. ठीक है, लैंग्वेज के बारे में देखो. बंटू लैंग्वेज, व्हाई आई एम टेलिंग, इफ यू आस्क अबाउट आदिलपुर, ओके आई विल टेल बंटू लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज कहीं ना कहीं ये करंट अफेयर में आई हैड सीन इट एनीवेयर, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट कहीं ना कहीं मैंने बंटू लैंग्वेज के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा है. सो दे में आस्क, तो ये हो गया डिटेलिंग. इंस्क्रिप्शन जस्ट 2 थिंग्स, कौन सा डायनेस्टी है, दैट इज अ मस्ट. एंड इफ anything unique which you have to see, which is anything unique. now एक पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन XYZ इंस्क्रिप्शन है, डायनेस्टी भी एक XYZ है. now the point is it talks about the genealogies of kings. this is not a unique point, so no need to remember. now this is unique in particular character name है, Bantu language spoken. तो ये जो चीज है ना, बंटू लैंग्वेज जो स्पोकन इन अफ्रीकन लेक्स, तो ये कहीं ना कहीं उसी कैरेक्टर को यूज करते थे, तो उस हिसाब से आप कनेक्ट कर सकते हो. तो इट ऑल डिपेंड्स व्हाट इज द इंफॉर्मेशन यू आर सीइंग. यूनिक इंफॉर्मेशन मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट. नॉर्मल इंफॉर्मेशन की ये किंग्स के बारे में बोलता है, इसी किंग के बारे में बोलता है, उसके बहुत बड़ी बड़ी तारीफें करता है और इट ग्लोरीफाइड ए किंग, सो दैट इज अंडरस्टूड, नो नीड टू रिमेंबर दैट. ओके, फाइन. तो एदिलपुर कॉपर प्लेट हो गया सेना का, डियोपरा इंस्क्रिप्शन हो गया सेना का. ओके, नेक्स्ट दे आर फेमस नाउ दिस डायनेस्टी, सेना डायनेस्टी, दे आर फेमस फॉर बिल्डिंग हिंदू टेम्पल्स. ओके, अब रिमेंबर ढाकेश्वरी टेम्पल ढाका में है. कैन एनीवन टेल मी व्हाई इट इज फेमस ढाकेश्वरी टेम्पल? कैन एनीवन टेल मी? इट इज मेंशन्ड इन नॉर्मल नितिन सिंघानिया बुक आल्सो. I haven't mentioned here. Can anyone tell me why Dhakeshwari temple is famous? Anyone? Dhakeshwari temple is the Hindu temple. no Hindu temple. तो पता चल जाता. Why it is famous? Because in modern history time, I don't know. Modern history time? Yes. Tell me. Exactly, I'm not remembering, but it's some kind of event. I forgot. Nothing. I forgot. It is. I feel it is the national temple of national this of Yes, sir. National temple. Yes, sir. of what? Which country? Bangladesh. Yes. रिमेंबर. ओके, बांग्लादेश का नेशनल टेम्पल है ढाकेश्वरी टेम्पल. आप गूगल में जाके इसका जो स्ट्रक्चर अभी देख लो, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी गुड स्ट्रक्चर, काफ़ी अच्छा. उसका टॉप में देखोगे ढाकेश्वरी टेम्पल, हिंदू टेम्पल है. इमेजेस में जाके देख सकते हो, काफ़ी एक 3-4 ऐसे छोटे छोटे वो होंगे जो ऊपर उनका छोटा मोटा शिखर होगा. यू कैन सी इन इमेजेस. ओके, इट इज़ अ नेशनल टेम्पल. नाउ द थिंग इज, बांग्लादेश बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, ठीक है, so their national temple is a Hindu temple. Very strange. Being a Muslim country, Dhakeshwari temple is the national temple of Bangladesh. Okay, you can add here. Okay. Even PM Modi visited that. Yes. So it is in news also. Dhakeshwari temple. Okay, they built the Shankara गौरेश्वरा टेम्पल इन कश्मीर. तो इन्होंने कश्मीर में भी शंकरा गौरेश्वरा टेम्पल भी बनाई थी. ओके, कश्मीर वाज अ प्लेस इनिशियली काफी हिंदू रूलर्स था. कश्मीर का एक मेंस में मैंने क्वेश्चन कराया था,
करकोटा डायनेस्टी एंड ऑल दे केम इन दिस पर्टिकुलर टाइम. करकोटा डायनेस्टी, इन्होंने भी एक शंकरा गौरेश्वर टेम्पल किया था. तो पहले से अशोका के टाइम से ही ये बुद्धिस्ट हिंदू का बहुत ही मिक्सिंग था. बट मिडिवल टाइम पे फिर वो चेंज हो गया. ओके, जो मुस्लिम डोमिनेटेड हो गया. ओके, तो पहले से ये हिंदू टेम्पल हिंदू डोमिनेटेड था वहां पे एंशिएंट टाइम पे. ओके, लिटरेचर, कमिंग टू लिटरेचर. जयदेव, वेरी फेमस. जयदेव के बारे में आप कहीं ना कहीं एमसीक्यूज में देखे होंगे. जयदेव, तो जयदेव ने गीता गोविंदा लिखा था, लेकिन अब द थिंग इज किसके अंडर में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जयदेव के बारे में जानते हो, गीता गोविंदा के बारे में जानते हो, इट इज वेरी कॉमन, बट किसके अंडर में? सेना डायनेस्टी. कोट पोएट लक्ष्मण सेना, इनका पंचरत्न थे, 5 जेम्स इन सेना कोट. वन ऑफ देम इज जयदेव. ओके, फाइन. नेक्स्ट, आफ्टर द सेना डायनेस्टी एक छोटा सा डायनेस्टी आया था उसी टाइम पे, जिनका नाम है देवा डायनेस्टी. इट इज द लास्ट इंडिपेंडेंट हिंदू डायनेस्टी ऑफ बंगाल. ठीक है, लास्ट इंडिपेंडेंट हिंदू डायनेस्टी ऑफ बंगाल, देवा. इनके बारे में ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. ओके, नेक्स्ट कम टू कुलिनिज्म. कुलिनिज्म का मतलब क्या है? Sir, हाँ, after Sena, you told Chero. चेरो ऑल्सो देयर. नहीं, आफ्टर सेना मतलब इमीडिएटली नॉट आफ्टर. दैट इज इमीडिएटली नॉट आफ्टर. सक्सीडेड लिखा है क्या? Okay, sir. सक्सीडेड अगर लिखा है देन इट विल बी इमीडिएटली. ओके, विल कम टू दैट नेक्स्ट पीडीएफ में. आई हैव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन. Okay, sir. Thank you. Okay. What is colonism now? This phenomenon was introduced by Balala Sena. So this total phenomenon was introduced in the Sena dynasty. Don't confuse it with Pala. Sena and Pala mostly confusion होती है. Pala पहले आया था, then Sena came. So introduced by Balala Sena, and this Balala Sena wrote Dansagar. एक text है. Also started Adbhut Sagar. It is not finished. Okay, Dansagar or Adbhut Sagar. It is called hypergamy, like marriage with bride of lower caste. This total thing is called marriage with bride of lower caste. How? It refers to marriage of a Kulina girl to a man in the same class, as well as marriage to one in a higher class. The essential thing is that the Kulina woman must not have her status lowered by marrying into a group of a lower rank. So this was a phenomenon. Just remember, this was a phenomenon which was, see, the thing is, it was introduced during Sena. Don't confuse it with ancient times. Don't confuse it. देखो, पॉलीगैमी वो सब पहले से था, लेकिन ये अगर कॉलोनिज्म के बारे में, दिस इज हाइपरगैमी. ठीक है. सो इट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग सेना पीरियड, और ये काफी ज्यादा ब्राह्मण्स में प्रिवेलेंट था, ईस्टर्न साइड में. ओके, जस्ट इतना ही एनफ है. दिल नॉट मेंस का ये नहीं है, क्योंकि स्कोप नहीं है ज़्यादा लिखने का, बट प्रीलिम्स में कहीं पे आ सकता है. ओके, या फिर कभी सेना डायनेस्टी के सोसाइटी के बारे में आएगा क्वेश्चन, यू कैन जस्ट मेंशन दिस पॉइंट एज अ वैल्यू ऐड कर सकते हो. ड्यू टू दिस कस्टम ऑफ मोर देन वन मैरिज, दे स्टार्टेड मैरिंग लोअर कास्ट गर्ल्स, एंड सून आफ्टर दिस लेड टू मेनी पॉलीगैमिक फैमिलीज अमंग द जो फैमिलीज, जो कुलीना फैमिलीज है बंगाल में. एक से ज्यादा मैरिज करोगे तो जाहिर सी बात है, दे स्टार्टेड मैरिंग लोअर कास्ट गर्ल्स, एंड सोन आफ्टर कहीं ना कहीं पॉलीगैमिक फंक्शन वो मतलब इट लेड टू दैट. सो पॉलीगैमी प्लस हाइपरगैमी, तो यहाँ से व्हाट हैपेंड इज ब्राह्मण्स बिकेम लार्जर कास्ट ड्यू टू एडिशन ऑफ दिस हाइब्रिड ग्रुप. तो वो हाइब्रिड बनते गया, क्योंकि ये जो फेनोमेनन इट वाज प्रिवेलेंट इन द ब्राह्मण्स, सो ब्राह्मण्स बिकेम अ हाइब्रिड ग्रुप बिकॉज ऑफ दिस. Okay, now third part. तो पाला डायनेस्टी हो गया. So now we are doing the Kannauj tripartite. Okay, we did with Gurjara Pratyaras, then we studied Palas. So during Palas only we studied the Sena dynasty, because after that Sena came. Then we go back again. We go back to Rashtrakutas. Rashtrakutas का पहला जो फाउंडर it is Danti Durga. Okay, it is Danti Durga after overthrowing the Chalukyas. जैसे कि मैंने बोला, बीच में राष्ट्रकूटस आए थे. राष्ट्रकूटस के बाद अगेन चालुक्य आएंगे. विल कम टू दैट. कैपिटल मान्यखेट कहाँ पे? महाराष्ट्र में, सोलापुर. वेरी फेमस प्लेस है सोलापुर. आई हैव ए वेरी चाइल्डहुड मेमोरी ऑफ सोलापुर. देयर इज अ ट्रेन कॉल्ड कोणार्क एक्सप्रेस. I had been to Bombay in my childhood.
when the train passes through Sholapur, they used to tell us ki close the windows, because I'm talking about 90s, 95 97, because बहुत सारे वहाँ पे कुछ मतलब डकॉइटी वगैरह होती थी. आई डोंट नो इफ इट इज टुडे इट इज देयर और नॉट, बट आई स्टिल रिमेंबर. आई वाज अ चाइल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. Sholapur, I clearly remember it. They'll tell to shut the doors ट्रेन का, बिकॉज नॉन एसी, हम नॉन एसी में ही गए थे, सो वहाँ पे ऐसा होता था. आई डोंट नो व्हाई. रिलीजन हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, प्रिसीडेड बाय चालुक्यन डायनेस्टी. तो इससे पहले चालुक्यन डायनेस्टी था, सक्सीडेड बाय वेस्टर्न चालुक्यन डायनेस्टी. तो ये बीच में राष्ट्रकूट आए थे. ओके, प्रिसीडेड बाय चालुक्यन डायनेस्टी, सक्सीडेड बाय वेस्टर्न चालुक्यन एम्पायर. ओके, अर्ली किंग्स वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदुइज्म एंड लेटर जैनिज्म. तो जाहिर सी बात है, हम कर्नाटका में जैनिज्म काफ़ी अच्छे से था, एंड हिंदुइज्म तो रहेगा ही रहेगा. बुद्धिज्म अभी नहीं है. ओके, बुद्धिज्म कंप्लीटली, नॉट कंप्लीटली, इट वाज अबाउट, मतलब इट वाज डिसअपियरिंग. ठीक है, वो नहीं था. द सोर्सेस ऑफ राष्ट्रकूटा हिस्ट्री include medieval inscriptions, ancient literature in Pali language, contemporary literature in Sanskrit, कन्नड़ा लैंग्वेज यहाँ पे काफ़ी फेमस हुआ था. ओके, लिटरेचर से राष्ट्रकूटा के बारे में we come to know about from literature, we come to about inscriptions, we come to about, and that literature was in Pali language, संस्कृत में भी था, कन्नड़ में भी था. ओके, नोट्स ऑफ अरब ट्रैवलर सुलेमान अल-मसूदी, इब्न खुर्दबदा, ये सब चीज जो आए थे उस टाइम पे, दे हैव मेंशन्ड द things about that particular time period, and from there we come to know about these empires. सुलेमान अल-मसूदी, इब्न खुर्दबदा, ये सब टाइमिंग देख लो, तो यहाँ से एटलीस्ट हमको इतना पता चल गया फर्स्ट कौन आया था, सेकंड कौन है. सुलेमान 851, 944, 912. सो नो नीड टू रिमेंबर दिस. जस्ट आप जब इसको पढ़ोगे, लिख साइड में ही इसको लिख दो, सुलेमान, देन 912, राइट. इब्न खुर्दबदा जो भी है, थर्ड इज अल-मसूदी. सी, अगर आप एक नोट पे बनाओगे ना, यू कांट रिमेंबर. इफ यू राइट 10 to 15 इन ए पर्टिकुलर पेज, यू कांट रिमेंबर. फ्रैगमेंट इट. नाउ यू फ्रैगमेंट इट इनटू 3, एटलीस्ट दीज यू नो. पहले सुलेमान आया था, फिर इब्न खुर्दबदा आया था, फिर अल-मसूदी आया था. एटलीस्ट इतना तो पता चल गया. बाकी और एक पेज में जब आएगा, उनका वहीं पे फ्रैगमेंट करके लिख देना. विजुअलाइजेशन मेमोरी इसको बोलते हैं, याद रह जाएगा आपको. एक साथ 10 को याद करने से बेहतर है आप 10 के जगह फ्रैगमेंट करके 2-2 करके याद करो, और ऊपर से विजुअलाइजेशन करके याद करो. लिख दो साइड में. यूजुअली बच्चों का एक होता है, आई डू नॉट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, बट आई हैव सीन एक ही जगह पे दे कंपाइल एवरीथिंग. ठीक है, अगर कुछ बुक्स का नाम है तो एक ही जगह सब कुछ वहाँ पे पूरा पूरा फुल पेज 2 पेज करके वहाँ पे लिख देंगे. नहीं रहेगा यार. जैसे कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस इंडिया का किस किस के कंट्री के सके, सूर्य किरण एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज एक ही पेज में लिख देंगे, वो नहीं याद रहेगा. विजुअलाइजेशन कैसे रहेगा, वो तो सब क्लमजी हो गया, पूरा एवरीथिंग क्लमजी हो गया. वहाँ पे अलग अलग पेज पे लिखो, तभी याद रहेगा. अलग अलग पेज पे. ओके, जहाँ पे आपको जो मिल रहा है वहीं पे लिखो. एक बार करके देखो, मुझे लगता है ये इट वर्क्स. मेरे साथ तो वर्क किया है. आई डोंट नो अबाउट अदर्स. देखो, करके देखो, कुछ जबरदस्ती नहीं है. ठीक है, आप करके देखो, स्ट्रैटेजी सब कर लो एंड इम्प्लीमेंट इट. इफ इट इज वर्किंग देन इट्स गुड, इफ इट्स नॉट वर्किंग देन यू कैन चेंज. ओके, ही रोट दैट हिज एम्पायर वाज द लार्जेस्ट इन कंटेम्पोररी इंडिया. ओके, सुलेमान फर्दर कॉल्ड राष्ट्रकूट एम्पायर एज वन ऑफ द 4 ग्रेट कंटेम्पररीज ऑफ द वर्ल्ड. मतलब काफी बड़ा चीज बोल दिया थे. सुलेमान ने बोला था राष्ट्रकूट एम्पायर इज अमंग द 4 बिग ग्रेट कंटेम्पररीज ऑफ द वर्ल्ड. According to Al-Masudi and Ibn Khurdab, most of the Hindustan kings turned their faces towards Rashtrakuta kings. It means काफी डरते थे सब. Rashtrakuta was very powerful. Actually, at that point, very powerful. Okay, Rashtrakuta king was known as King of Kings. ठीक है, राजाओं का राजा ऐसे बोला जाता था उनको. Okay, age of Imperial Kannauj. ये अगर क्वेश्चन आएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल काइंड ऑफ एग्जाम्स. एज ऑफ इंपेरियल कन्नौज अगर आएगा, सम हिस्टोरियंस कॉल टू राष्ट्रकूटा रूल एज एज ऑफ इंपेरियल कन्नौज.
not to Gurjara Pratiharas, not to Palas. एज ऑफ इंपेरियल कन्नौज अगर आएगा इट बिलोंग्स टू द राष्ट्रकूटा जिस टाइम रूल किए थे उसी टाइम को एज ऑफ इंपेरियल कन्नौज बोला जाता है। ओके ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? मोनर्की था। सिलेक्टेड प्रिंस, सिलेक्टेड क्राउन प्रिंस बेस्ड ऑन हेरिडिटी, बट द क्राउन डिड नॉट पास ऑन टू द एल्डेस्ट सन, वो नहीं था। एबिलिटीज कंसिडर्ड मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। देन द एज एंड क्रोनोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल क्राउनिंग ऑफ गोविंदा थी, तो एबिलिटी वॉज कंसिडर्ड, ठीक है। अगर ही इज वेरी मच ही हैज मोर एबिलिटी देन ही विल बी क्राउन्ड एज अ किंग। ओके, मतलब हेरिडिटी था, सॉरी हेरिडिटरी था, बट अगर 3 to 4 सन्स है, सो इट्स नॉट लाइक इफ पहला सन होगा, फर्स्ट सन नॉट कंपल्सरी, देयर मेरिट विल कम टू चूज अमंग which of the son will become the next king. Okay, most important position under the king was the chief minister or Mahasandhi Vigrahi. Remember chief minister, just remember the name Mahasandhi Vigrahi, इनका अंडर में। पोजिशन ऑफ चीफ मिनिस्टर केम विथ 5 इंसिग्निया, एक फ्लैग, एक कॉन्च, एक फैन, एक वाइट अम्ब्रेला, एक लार्ज ड्रम। जस्ट यू कैन रिमेंबर, ऐसा कोई स्कोप नहीं है इसका, क्वेश्चन फॉर्मेट में ज़्यादा हो नहीं सकता। जस्ट रिमेंबर 5 चीज़ के साथ ही वो पोजीशन आता था। 5 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड पंच महाशब्दस। नाउ रिमेंबर दिस, दे विल आस्क यू इन आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन। पंच महाशब्दस जो इंस्ट्रूमेंट्स है, इट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर? सो फ्रॉम हियर यू कैन पंच महाशब्दस बिलोंग्स टू राष्ट्रकूटास। ओके, अंडर द किंग एक कमांडर रहेगा, दंडनायक, वेरी कॉमन। फॉरेन मिनिस्टर महाकश्यप पताधिकृता एक नेम है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग नाम है, सो इट विल नॉट कम। महामत्या पता है सबको, प्राइम मिनिस्टर। और पूर्णामत्या महासमंता इज अ फ्यूडेटरी और हाई रैंकिंग लीगल ऑफिसर। और फ्यूडल थिंग्स वाज, अब ऐसा नहीं कि फ्यूडलिज्म एंडेड, नो, फ्यूडलिज्म ग्रीव। फ्यूडलिज्म स्टार्टेड ड्यूरिंग, अच्छा और एक चीज़ मैं बताने वाला था, ओके बता देता हूँ। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, क्योंकि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, मुझे बताओ, जैसे मेरा क्वेश्चन आंसर मुझे दो, पहला एविडेंस, इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ लैंड ग्रांट्स कम्स अंडर व्हिच डायनेस्टी? फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, टेल मी। comes under Satavahana. Okay. Yes, Satavahana. ठीक है। लैंड ग्रांट्स, उसके बाद लैंड ग्रांट्स इंक्रीज्ड ड्यूरिंग गुप्ताज, फिर पोस्ट गुप्ता से कंटिन्यूस मिडिवल तक फ्यूडलिज्म इंक्रीज्ड। अगर क्वेश्चन, नाउ द क्वेश्चन इज फर्स्ट लिटरेरी एविडेंस ऑफ लैंड ग्रांट्स, मतलब इसके ऊपर, ठीक है, बहुत ही कम लेवल का था। आई एम नॉट टेलिंग कि बहुत ही ज्यादा, बहुत ही कम लेवल का था। एंड दिस वी हैव कवर्ड इन आवर नोट्स ओनली। कैन यू टेल मी, बहुत एक और बीच की जगह से, आज मैंने ऑफलाइन क्लास में वही आपका ही नोट्स पढ़ाया है, वहां से मुझे आज सडनली मिला। इट इज महाजनपदस। महाजनपदस में मोर इट वॉज अ लिटरेरी एविडेंस, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, राइट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट, वहां से बहुत कुछ मिला है, सोर्सेस। तो वहां से ये पता चला, यस लैंड्स वर ऑल्सो गिवन। आप देखोगे एंड में टुवर्ड्स 46 और 47 पेज, 54 पेज का है, 46, 47 और 45 पेज पे है वो, लैंड्स वर गिवन टू ब्राह्मणस। बहुत इनिशियल लेवल, बट कोई इंस्क्रिप्शन नहीं है। टेक्स्ट ऐसा बोल रहे हैं, मे बी दैट ऑब्वियसली टेक्स्ट विल ऑलवेज यूज, मे बी, यस हुआ होगा। तो ऑलवेज गो फॉर द वोकेबुलरी, सेंटेंस क्या है, क्या लिखा है, एंड द मीनिंग क्या। अगर प्रॉब्लम हो रही है एग्जाम पे, तो उसका हिंदी का पढ़ लेना, जिसको हिंदी पढ़ना आता है, यू कैन सी द हिंदी पार्ट, सो दैट देखो कंफ्यूजिंग और दिस काइंड ऑफ ट्रिकी क्वेश्चंस विल कम, 100% इट विल कम, yet because this is the beauty of this exam. So you have to do your preparation, you have to adapt your preparation with the exam format. Exam will not adapt you, you have to adapt to the exam. Okay, and every year UPSC will surprise, every year सरप्राइज। तो अब इस साल भी सरप्राइज हुए, ठीक है,
दिस ईयर ऑल्सो यू विल ऑल्सो 2022 में भी यू विल बी सरप्राइज्ड 100%, ये मान के चलो। लास्ट ईयर भी हुए थे, एवरी ईयर हमको लगता है कि हम नहीं, हम पढ़ के चले जाएंगे। आप जो 2021 पे आया था हम उसी स्टाइल में जाएंगे, 2020 में वो स्टाइल नहीं रहेगा, यू विल गेट सरप्राइज्ड। सो हमेशा थोड़ा अपना लेवल को ऐसा ऊपर करो ताकि वो सरप्राइज फैक्टर नहीं रहे। ओके, सरप्राइज फैक्टर से बाहर आने के लिए थोड़ा प्रिपरेशन को अच्छा करना पड़ेगा, बिकॉज वी कांट गेस कि क्वेश्चन क्या आएगा। सो वी हैव ओनली वन सब्जेक्ट, only one subject which you can give 100% in our paper is polity. There is not a single subject which you can give 100%, because question can come from anywhere. This is the only subject where question will not come from anywhere, it will come from fixed. Still then you do mistakes in polity. तो अगर कुछ कर सकते हो तो इसको करो, पॉलिटी को। देन कम्स हिस्ट्री एंड इकोनॉमी। हिस्ट्री मीन्स ऑल हिस्ट्री आई एम इंक्लूडिंग 18 18 18 or 17 17 17 or 15 15 15, so 45 to 55 questions आएंगे। It's not a small thing, it's not a small thing। मैं सब हिस्ट्री मिला रहा हूँ, मॉडर्न, एंशिएंट, आर्ट एंड कल्चर, एवरीथिंग मिक्स करके। It's not a small thing। तो यहाँ पे और इस 55 में से एटलीस्ट अगर 45 पकड़ते हो या फिर 55 पकड़ते हो तो एटलीस्ट 18 to 20 क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी इज इन योर ओन हैंड, आपके हाथ में है। 20 क्वेश्चन से 20 सही कर दोगे, स्ट्रेट 40 मार्क्स की स्कोर, स्ट्रेट 40। यू नीड टू स्कोर ओनली 60 मार्क्स मोर। 100, आजकल 100 भी कट ऑफ नहीं जा रहा है, 90s में आ चुका है कट ऑफ, 92 94 95 में कट ऑफ जाएगा, 96। तो उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन, लास्ट 3 to 4 मंथ्स उस हिसाब से करो प्रिपरेशन। फिर उसके बाद अगर आप IR एंड एनवायरमेंट को पकड़ते हो, एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आपका पूरा गेम बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपका हिस्ट्री थोड़ा फैक्चुअल है तो आप एनवायरमेंट को स्ट्रॉन्ग करो। IR से 2 to 3 क्वेश्चन विल कम, ठीक है। फिर एंड में आप जनरल साइंस, जो कि हम इस बार जनरल साइंस का मिसलेनियस क्लास में शुरू करेंगे अभी नेक्स्ट वीक में। तो जनरल साइंस इज डिफिकल्ट, एक्चुअली इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि वो साइंस में बहुत कुछ फैक्ट्स होते हैं और याद नहीं रहते, और ऊपर से जनरल साइंस का क्लैरिटी भी नहीं कि एवरी ईयर इट विल कम। दिस ईयर इट केम, जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल इकोलॉजी और नॉर्मल साइंस जो जनरल होता है, बट श्योरिटी नहीं कि हर साल आएगा, बट इतना श्योरिटी है कि दीज थिंग्स विल कम, दीज आर बेसिक टॉपिक्स, दीज थिंग्स विल कम 100%। तो अपना प्रिपरेशन उस सेंस में रखना हमेशा, ओके ठीक है। सो जब भी आप सेल्फ स्टडी लास्ट 30 डेज कर रहे हो तो थोड़ा ये सब मान के जो समझ के अपना जो डेली टारगेट्स है उस हिसाब से बनाओ, ताकि थोड़ा हॉलिस्टिक हो जाए और जल्दी कवर हो जाए, और एफिशिएंसी के साथ करना हमेशा। एफिशिएंसी, बिना एफिशिएंसी का कुछ नहीं होगा। टाइम, यू हैव टू बी टाइम एफिशिएंट। 6:30 मीन्स 6:30 आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू गेट अप एट 5 मीन्स आई हैव टू गेट अप एट 5, कुछ भी हो जाए यू हैव टू गेट अप। मुश्किल है, नहीं होता है, लेकिन करना पड़ेगा, और उसके लिए यू हैव टू क्रिएट इंटरेस्ट। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक नहीं होगा। यू हैव टू क्रिएट इंटरेस्ट। एक छोटी सी बात है, 2-3 महीने का बात है, लाइफ सेट हो जाएगी। Kingdom was divided into mandalas, rashtra's, provinces. Rashtra was ruled by a rashtrapati, very common thing. Rashtra was divided into district और विषयास ruled by विषयापति। ये हर चीज, हर डायनेस्टी में कहीं ना कहीं सेम रहता है। फिर विषय के नीचे में नाडू होता है, दे लुक्ड आफ्टर बाय नाडू गौडा और नाडू गवुंडा, दे वर द वन हु वर लुकिंग इनटू दिस। लोएस्ट डिवीजन वाज ए विलेज और ए ग्राम एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ग्रामपति और प्रभु गवुंडा, एक नया नाम है, जस्ट रिमेंबर। लार्ज आर्मी, इन्फेंट्री, और दे आर वेरी फेमस फॉर फोर्ट्स। फर्स्ट पेज पे आज हमने पढ़ा था, दे आर फेमस फॉर फोर्ट्स। इशूड कॉइन्स सच एज सुबर्णा ड्रामाज, रिमेंबर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में एक बार आ चुका है इफ आई रिमेंबर इट नाइसली, बट मुझे क्लियर नहीं है। ड्रामाज जो टर्म है उसको कॉइन्स को ही बोलते हैं। किसके टाइम पे? राष्ट्रकूटा के टाइम पे, ओके, सिल्वर और गोल्ड पे। ओके, नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन, दैट इज द सौंदत्ति इंस्क्रिप्शन। सौंदत्ति इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू सूर्यवंशी किंगडम of Sondati. Okay, people were also known as Rattas, remember Rattas। जैनिज्म को फॉलो करते थे, ये भी टर्म इंपॉर्टेंट है, दे कैन आस्क इन क्वेश्चन, ओके Sir, यस।
Sir, where does this Suryavanshi kingdom come? Suryavanshi kingdom came. It's a very मतलब I do not know where exactly it come, but सूर्यवंश मतलब ये it's a part of genealogy. Okay, जैसे बोलते हैं कि ये उस बिरादरी का है, ऐसा बोलते हैं ना हम हिंदी में. He's from that सूर्यवंशी kingdom. He's from चंद्रवंशी kingdom. ये सब लिखा गया है सब पुराणज में. ठीक है, पुराणज में लिखा गया है. तो इनका डिटेलिंग वैसे भी जरूरत नहीं है. ओके, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी यूज होता है, वो उसी किंगडम से मतलब वेरी ओल्ड, जैसे मतलब फोर फादर्स बोलते हैं ना, उस सेंस में ये बोला गया है. Okay, sir. Got it? Okay. 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 फिर कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स है. कृष्णा वॉन, कैलाश टेम्पल, एलोरा. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एलोरा टेम्पल राष्ट्रकूटस के अंडर में तो हुआ है. अजंता किसके अंडर में हुआ है अभी बताओ. फर्स्ट किसके अंडर में हुआ? ऑब्वियसली बहुत रूलर्स आए थे. फर्स्ट किसके अंडर में बना? मेन जो चीज है 90% वकतकाज. कुछ केव्स अजंता का सातवाहना के हैं, ये भी हमने पढ़ा है. कुछ केव्स वेरी स्मॉल सम अमाउंट, बट मेनली वकतकाज थे. राष्ट्रकूटाज फर्स्ट एलोरा. ठीक है. और इसका कैलाश टेम्पल एलोरा का डिटेलिंग इन आर्ट एंड कल्चर. ध्रुवा डिफीटेड द प्रतिहरास बट डिड नॉट कैप्चर कनौज. इन्होंने प्रतिहरास को हराया था. गोविंदा थ्री डिफीटेड द पालाज एंड प्रतिहरास, ऑफन कंपेयर टू अलेक्जेंडर. गोविंदा थ्री वेरी फेमस, अलेक्जेंडर के साथ कंपेयर होता है. अमोघ वर्षा के बारे में एक क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, क्रोनोलॉजी पे इनका वर्ड मेंशन्ड था. अमोघ वर्षा द बिल्ड द कैपिटल सिटी मन्यकेटा कॉल्ड द अशोका ऑफ साउथ, वेरी फेमस. ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूट रूलर इज अमोघ वर्षा वन. wrote Kaviraja Marg, very famous Kaviraja Marg in Kannada. Now recently it was translated into English एक दो साल पहले by RVS Sundaram and Devan Patel. Not recent, मतलब कुछ साल पहले. Okay, recently this book Kaviraja Marg was translated into English. Okay, Amogh Varsha was also a very he was very famous for his this art. Okay, he wrote Sanskrit. His religious work was very famous. This remember प्रश्नोत्तरा और प्रश्नोत्तरा रत्नमालिका. ओके, और ये संस्कृत में है, कन्नड़ा में नहीं है. एवरीथिंग इज नॉट इन कन्नड़ा. यस, कन्नड़ा लैंग्वेज काफी अच्छा हुआ था इनके टाइम पे, राष्ट्रकूटा के टाइम पे, जैसे कि कविराजा मार्गा वाज इन कन्नड़ा लैंग्वेज, बट प्रश्नोत्तरा रत्नमालिका वाज इन संस्कृत. नाम से पता चल जाता है, नाम अगर इफ यू रीड और तो थोड़ा IQ भी लगाओ, ये कन्नड़ा लग नहीं रहा है. प्रश्नोत्तरा कन्नड़ा कैसे लगेगा? कविराजा मार्गा थोड़ा, कविराज ये सब चीज साउथ इंडियन लगता है. ओके, वैसे कविराज मार्गा भी संस्कृत मतलब लगता है, कन्नड़ टोटली नहीं लगता है. स्टिल देन मतलब एक बोल रहा हूँ याद करने के लिए. ओके, कविराज मार्ग द रॉयल पाथ ऑफ द पोएट्स बोला जाता है इसको, कविराज मार्ग को द रॉयल पाथ ऑफ द पोएट्स. ओके, इट डिस्क्राइब्स द एंटायर रीजन बिटवीन गोदावरी एंड कावेरी एज द कन्नौज कंट्री. गोदावरी से कावेरी तक का जो एरिया है, इट इज कॉल्ड एज द कन्नौज कंट्री. ओके, तो ये भी सब रिलेटेड टू राष्ट्रकूटाज. ओके, was a disciple of Acharya Jinasena, was a follower of Jainism, Digambar Jainism, patronized Buddhism and Jainism also. Buddhism भी था, but it was less. Remember, Buddhism was less. During his rule, the Jain Narayan Temple of Pattadakal, World Heritage Site है, ठीक है, was built इन्हीं के टाइम पे. बहुत सारे फेमस स्कॉलर्स है, जिनासेना, वीरासेना, गुणाभद्रा वेरी फेमस. गुणाभद्रा जैन टेक्स्ट लिखते थे. हम जैनिज्म में पढ़े थे, एक दो टेक्स्ट पढ़े थे which were written by गुणाभद्रा in the 9th 10th century, इन्हीं के टाइम पे, राष्ट्रकूट टाइम पे. रिमेंबर, एंड श्री विजया. ओके, कृष्णा 3 built the pillar of victory at Rameshwaram. pillar of victory भी क्वेश्चन आएगा. सो अगेन कृष्णा 3, no need to remember this, just remember Rashtrakutas. daughter of Amogh Varsha 1, चंद्रा बल्लभ, सो एडमिनिस्टर फॉर सम टाइम. तो इसका मतलब लेडीज वुमेन भी एडमिनिस्टर किए, फॉर सम टाइम किए, लेकिन किए हैं. चंद्रा बल्लभ. त्रिरत्न ऑफ कन्नड़ा लिटरेचर, पंपा, पूना, राणा, ये सब आर्ट एंड कल्चर में आएंगे. ये सब टॉपिक्स है, ठीक है, राष्ट्रकूट आर्ट एंड कल्चर में. पंपा, पूना एंड राणा वेरी फेमस फॉर कन्नड़ा लैंग्वेज. फादर ऑफ कन्नड़ा लिटरेचर, ठीक है, पंपा रोट आदि पुराण. ओके, आदि पुराण इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हो, लेकिन विक्रमार्जिवा विजय वेरी वेरी फेमस.
Vikramarjiva Vijay. Pona wrote Shanti Puran and Ranna wrote Ajinath Puran. Just remember Shanti Puran, Ajinath Puran. Okay. So basic information and some more than basic also we covered. Next class will again we'll study thoda detailing and some more information of this period. Okay. Then we'll move to the next Rajput. Okay. Okay, fine. Yeah, after 5. Okay. Okay, let's stop it here.